Good afternoon, Helen. Good afternoon. Yes. Recording has Okay, now specially computation one. Question one done. Question one. I have given in homework question number 2. Complete or remaining? Question 2 completed or remaining? Question number 2 from exercise completed or remaining? Have you completed? Question number 2 or remaining? Everyone? Question 2 completed or remaining?
Sir, completed. Okay. So now there is our question number 3. Enter the following transaction in the journal of Shahi Brothers. We have to prepare here Shahi Brothers journalizing. So now we are starting question number 3. So I have prepared here format for question number 3. The Journal of Sahil Brothers. Year 2008. 2008 October 1st. Okay. Directions. Sorry, your voice is breaking. Breaking. Now, clear everyone? Yes, sir. Okay. So first, transaction purchase goods from Anil for cash. Purchase goods from Anil for cash. So this is a cash transaction or the credit transaction? Huh? Yes. हमारे लिए Yes. हमारे लिए Okay. That is the cash transaction. So purchase account debit to cash account credit, not Anil, not Anil account. We have to credit cash account. Okay. Cash account हम यहाँ पे करेंगे credit. Purchase account. To cash account credit being good purchase by okay amount है 40,000. So 40 here debit, 40 here debit. Okay. Now there is also another second one. Purchase goods from Atul. Purchase goods from Atul. Purchase goods from Atul. So again, purchase यहाँ पे डेबिट होता है and credit transactions. Credit transactions ये है यहाँ पे credit transaction. What we have to do here last year, we are just on credit for last year. So Atul is given. Purchase definite debit. Atul is given so personal. Okay. So Atul account
यहाँ क्या करेंगे? Count. Sir, your voice is It is breaking. here. Oh. स्पीड इज ओके बेटा, स्पीड यहाँ पे ओके है। Now clear? No, sir. Okay. No, sir. Okay. I do. Now everyone, now it's clear? Yes, sir. Yes? Now it's clear? Yes, Everyone? sir. Yes, Everyone? Now clear everyone? Clear everyone? Okay. Yes, sir. Okay, see, now we are on a second transaction, purchase goods from Atul. Purchase goods from Atul. So what we have to do? The same thing, but here cash transaction, so we write down cash account credit. But now Atul account credit. So date 3, October 3, purchase account debit to Atul account credit, being goods purchase from Atul. 75,000. 75,000. 75,000. 75,000.
Return goods to Atul. Here we purchase goods from Atul. Now we are returning goods to Atul. Means that is our purchase return. So whenever we are selling to someone, तो जिसके पास हमने goods लिया उसी को वापिस देते हैं. Only thing is here, Atul account में purchase return on credit. क्या करना होगा? जब हमने परचेज किया था तो हमने क्या किया? परचेज डेबिट टू क्रेडिट. Purchase debit to Atul credit. Now everything returning goods to Atul. So debit 6 Atul account debit to purchase return account credit. अमाउंट है 3000 और bring goods return to अतुल. हमने अतुल को गुड्स रिटर्न किया है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, पेड कैश टू अतुल. पेड कैश टू अतुल 50,000. Cash paid to Atul 50,000. We are paying cash to Atul. हम यहाँ पे अतुल को कैश पे कर रहे हैं. So first one is Atul account and second one is cash account because cash goes out. Cash हमारे पास से जा रही है, cash goes out. So Atul account and cash account. Two accounts affected here. दो account यहाँ पे affected हो रहे हैं. ठीक है. So what we have to do? हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनको भी हम पैसे पे कर रहे, कैश गोज आउट, कैश कम्स इन हेडिंग ऑफ रियल अकाउंट. किसमें जाएगी? कैश जो है हमारे रियल अकाउंट में जा रही है. आपको ये करना है. और वन मोर, आपकी बुक का पेज जैसे आप देना है तो आपको वहां पे बैलेंस नोट डाउन और होगा. सब यहाँ मेरा पेज खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉरी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. क्योंकि जो टोटल अमाउंट है आपका पेज खत्म होगा वहां आप क्लियर करोगे, यानी पेज फॉरवर्ड उसे हम बोलते हैं. और यहाँ क्या टोटल करना है. जहाँ तक पेज खत्म होता है वहां तक टोटल कर लेना है. ठीक है. जहाँ तक क्या करना है? टोटल करना है. मेरा यहाँ 3 एंट्री के बाद टोटल क्या हो रहा है? मैं नीचे बनाऊं तो टोटल मेरा कितना होगा? 40 + 73, 40 + 75 + 3. ठीक है. ये जो मेरा टोटल है वो मुझे यहाँ पे बैलेंस पीएफ में लिखना है. और यहाँ पे मेरा पेज स्टार्ट होता है. सपोज कि यहाँ मेरा पेज स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैलेंस पीएफ, यानी जो टोटल वहाँ पे नीचे रखा हुआ वो टोटल मैं यहाँ पे रखूंगा. तो मेरा टोटल कितना? 75 + 40 कितना होगा? 5 और 4 1,18,000. 1,18,000 टोटल था. सीधा सीधी आपने ऐड कर दिया. ठीक है. सो 1,18,000. ओके. और फिर यहाँ से उसके बाद में नीचे से जो मेरी आगे की एंट्री जो मैं स्टार्ट करूँगा. ठीक है. जैसे हमारी एंट्री थी पेड कैश टू अतुल 8 की, October 8. So cash goes out or we are paying to Atul. So Atul is receivable. Atul account debit to cash account credit 50,000. ओके. यहाँ पे बिंग में लिखेंगे हम बिंग
cash paid to Atul. Cash paid to Atul. Done. Being cash paid to Atul. Clear everyone? So ये brought forward और carried forward. Whenever your page is over, आपका पेज जहाँ पे भी ओवर हो रहा है आपको वहाँ पे टोटल करना है. That is called balance CF, carried forward. और नेक्स्ट में उसको आप brought forward कर दोगे. ठीक है. Now next one. Sold goods to Charu. Sold goods to Charu. Sold goods to Charu. Credit transaction और cash transaction. क्रेडिट के कैश चाहिए. Sold goods to Charu. नो, कहाँ पे यहाँ पे कैश का लिखा है. Credit transaction. Directly, whenever the name is given, name of any firm, name of any company is given, it means that is a credit transaction. तो यहाँ पे ये credit transactions है. ठीक है. So sold goods to Charu. So Charu is receiver according to the rules of personal. Charu क्या है यहाँ पे receiver है. So Charu's account debit and we are selling goods to her. So sales account credit. Sales always credit. Purchase always debit. So उसके according यहाँ पे हमारी डेट कौन सी है. 10 डेट को Charu account debit to sales account credit. Being equal to Charu. Okay. How much amount? Being goods sold to Charu? 1 lakh. Next one. Charu returned 20% of goods और हमने अमाउंट नहीं दी. अमाउंट is not given. Charu returned 20% of goods. तो Charu को हमने टोटली कितना दिया था. 1 lakh का. We have sold to Charu 1 lakh rupees goods. So now she is returned the goods of 20% goods को रिटर्न कर रही है. 20,000. तो जो 1 lakh का 20% मीन्स 20,000 का गुड्स है वो रिटर्न कर रही है. So whenever the amount is not given, we have to consider that total amount we sold it. जो हमने सोल्ड किया उसी अमाउंट को हमें कंसीडर करना होगा. तो यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है. ओके. हमने पहले क्या किया था. चारू अकाउंट डेबिट किया था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था. नाउ ऑपोजिट एंट्री. ठीक है. डेट कौन सी है. 12 डेट. 12 डेट को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट क्रेडिट. बिकॉज चारू ने इतना गुड्स हमें रिटर्न किया है. सो दैट्स व्हाई चारू अकाउंट क्रेडिट 20,000. Write down in the bracket being goods returned by Charu. Done. Now next one. Paid rent 2,000. Paid rent 2,000. क्या है हमारे लिए ये रेंट. इनकम और एक्सपेंस. एक्सपेंस. सो ऑल द एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट. जो भी एक्सपेंस है सारे हमारे क्या होते हैं. डेबिट होते हैं. सो यहाँ पे भी ये एक्सपेंस भी डेबिट ही होगा. सारे जो एक्सपेंस है वो हमारे क्या होते हैं. यहाँ पे डेबिट ही होंगे. सो ये एक्सपेंस है हमारा रेंट. डेट रेंट अकाउंट डेबिट
to cash account credit. Related account credit amount 2000. Or in bracket being repaid. Again we have to make a total. हमारा पेज यहाँ खत्म किया, so हमें कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हो रहा है कितना 280 का हो रहा है 290 का हो रहा है 290 होना चाहिए सर 290 का टोटल होना चाहिए तो बहुत सा 290 बैलेंस फॉरवर्ड कर रहा हूँ 290 चलो लास्ट एंट्री है वो मैं रख देता हूँ ताकि ये सम कंप्लीट हो जाए ओके लास्ट एंट्री हमारी साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000 साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल ऑनर बिजनेस ही विड्रॉ कैश फॉर के लिए वो लेके जा रहा इट मींस दैट इज ड्राइंग whenever the owner of the business withdraw any cash drawing account. So drawing always यहाँ drawing account राइट डाउन करना पड़ेगा drawing account Sir, voice is breaking. drawing account debit to cash account. Wait a minute. Now everyone, now clear? Total of this one 3 lakh. Total 3 lakh. So here we see purchase and sales account and expense account के हमने transactions देखे. Here we completed cash, purchase, sales, बहुत सारे transactions हमने यहाँ पे किए. Now transaction of discount. अभी जो हम करेंगे तो ट्रांजेक्शन ऑफ डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन में करवाऊंगा कि डिस्काउंट हमें कैसे एंट्री करनी होगी तो डिस्काउंट कैसे एंट्री करेंगे सी डिस्काउंट के लिए मैं आपको क्रेडिट डिस्काउंट अगेन देखिए अच्छा हो रहा है
Clear everyone? Clear everyone? Okay. So now we are discussing about trade discount and cash discount. Okay. Now we are discussing about cash discount and trade discount. ये एंट्रीज जो हम देखेंगे. Okay, how can we record the entry of trade discount and cash discount? See, whenever the trade discount is given, we don't want to record the discount. Trade discount हमें record करना नहीं है. So कैसे नहीं है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. Suppose सबसे पहले हम transactions लेते हैं. Purchase goods from Raj rupees 20,000. Purchase goods from Raj rupees 20,000 at 10% trade discount. 10% trade discount. Then what we have to do? चलो यहाँ पे पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद कैश डिस्काउंट. और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हम देंगे भी और हमें मिलेगा भी. यानी कि we receive or we give to someone. Whenever we are purchasing from someone, we are getting the trade discount, and when we are selling goods to someone, at that time we are giving trade discount to someone. Okay. So see, here I write down the purchase goods from Raj 20%, 10% trade discount. So normally what we have to do when we are purchase from Raj, generally उसकी entry क्या होती है? Anyone? चलो. Purchase account to Raj account. Purchase account debit to Raj account. Yeah, purchase account debit to Raj account credit. So entry as it is वैसे रहेगी, सिर्फ चेंज आएगा अमाउंट में. सिर्फ चेंज आएगा अमाउंट में. 20,000 का 10%, 2,000. So here I have to write down 18,000, 18,000. Why 18,000? Because I have deducted trade discount. 20,000 का 10% यानी कि कितना हो जाएगा? आप कैसे निकालते हो परसेंटेज? 20 into 10 by 100. So it will be 2,000. तो 2,000 हमें यहाँ पे डिडक्ट कर देने होंगे. ठीक है. We don't want to show any trade discount in the entry. हमें कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट शो करना नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Clear everyone? Yes, sir. Okay, now we are taking one example of sales. Okay, sales, sold goods to Rahul, rupees 50,000 at 20% trade discount. Sold goods to Rahul at rupees 50,000 at 20% trade discount. So normally entry क्या होती है when we are selling goods to someone? What we have to do?
जब हम नॉर्मली एंट्रीज क्या करेंगे, जब व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स टू समवन, तब हम जनरल क्या करते हैं, जनरलाइजिंग। व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स टू समवन, धार्मिक, व्हाट इज द एंट्री? सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और एंड वो मतलब राहुल अकाउंट डेबिट। या राहुल अकाउंट डेबिट, Raul's account debit to sales account credit. 50 का 20%, 5 to the 10, then amount will be a 40,000. 40,000. Done, everyone? There is a trade discount. Whenever we are giving trade discounts, we don't want to record that amount. हमें वो amount को सिर्फ deduct करना है. The other entry will remain same. बाकी की जो हमारी एंट्रीज है वो एज इट इज रहेगी। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, एंड वन मोर थिंग, टुमारो नो क्लास, बिकॉज यू ऑल ऑफ यू आर कमिंग हियर ना, सो टुमारो नो क्लास। ओके सर। सर एक भी क्लास नहीं होगी ना? ओके ना, नो, एक भी क्लास ही नहीं। सर कल स्कूल पे किया है? जस्ट फॉर प्लेइंग। हाँ सर। एंड you have any doubt, then bring it. ओके सर। Okay, now cash discount. That is a trade discount. Now we discuss about the cash discount. We have to record the cash discount. हमें cash discount record करना होगा। जब भी हम cash discount देंगे, we have to record cash discount. No, not compulsory. Not compulsory, Hiral. You wish then. No compulsory. Okay, now we are discussing about the cash discount. Cash discount we have to record when we are giving to someone and when we are receiving from someone. In both the cases, we have to record cash discount because when we are giving to someone, that is a loss for us, and when we are receiving from someone, there is a profit for us. So we have to record in both the cases that cash discount. ट्रेड डिस्काउंट हमने कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया था। ओके, बट वी हैव टू रिकॉर्ड दी कैश डिस्काउंट, हमें रिकॉर्ड करना होगा व्हेन वी आर गिविंग और व्हेन वी आर रिसीविंग। चलो, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? तो एक पेड कैश टू मोहन, चलो एक ट्रांजेक्शन लेते हैं हम यहाँ पे। Paid cash to Mohan rupees 9,600 and received cash discount. Received cash discount rupees 400. Chalo. Then what we have to do, here we are receiving cash discount from Mohan. हमें यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, so simple, when we are receiving cash discount, तो हमें क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। या तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वे प्रॉफिट जब हमें हो रहा है, सो क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। हाँ, वी आर रिसीविंग क्रेडिट। हाँ, देन ओके, नाउ सी, तो डिस्काउंट तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पेड कैश टू मोहन, हियर मोहन इज रिसीवर। मोहन कौन है यहाँ पे? रिसीवर है। वी आर पेइंग टू मोहन, so definitely
मोहन का अकाउंट तो यहाँ पे डेबिट हो ही जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट, बिकॉज मोहन इज अ रिसीवर। टू हमारे पास से क्या जारी है यहाँ पे, कैश, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। या तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं ऐसे, अगर हमें कंबाइन नहीं करनी है तो क्या करेंगे, अगेन मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ये 9600 9600 400 400। ओके, ये हमने अलग अलग एंट्री की है। सपोज मैं कंबाइन करना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, देखो यहाँ पे दो मेरे क्रेडिट हो रहे थे, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे 10,000, यहाँ पे मेरे 9,600 और 400। सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, यानी कि एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पे आप अलग अलग करो तो भी चलेगा, ऐसे कंपाउंड करो तो भी चलेगा। सो जनरली कंपाउंड ही करनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी, और यहाँ वहां पे हमें दो बार वो लिखना भी नहीं पड़ेगा। Here everyone, here we record discount received। जो हमें कैश डिस्काउंट मिला है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इट विल बी अ क्रेडिट, एंड व्हेन वी आर गिविंग टू समवन एट दैट टाइम डिस्काउंट डेबिट, तब डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। क्लियर एवरीवन? चलो उसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया पहले क्लियर? क्लियर ये वाला? Sorry? Okay. Now we are taking one another example. When we are giving to someone, जब हम किसी को दे रहे तब, और ये जनरली कैश डिस्काउंट किसके ऊपर होगा, कैश के ऊपर ही होगा, कैश ट्रांजेक्शन में ही होगा। क्रेडिट में कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दोनों में आएगा, कैश और क्रेडिट। क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग्स, ट्रेड डिस्काउंट दोनों में आएगा, कैश और क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन हो या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों में ट्रेड डिस्काउंट आ सकता है और आएगा ही। बट कैश डिस्काउंट तभी आएगा when we are paying cash to someone or receiving from someone, यानी कि वो कैश ट्रांजेक्शन होगा तो ही हम कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नॉट। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। सिंपल थिंग, अगर आप कैश पे ही नहीं कर रहे हो, आप क्रेडिट में ले रहे हो, तो कैश डिस्काउंट किसका? ओके, सो व्हेनेवर we are paying, we are not paying, sorry, in a cash, at that time we don't want to receive the cash discount। तो हमें तब कैश डिस्काउंट देना नहीं होगा, या तो हम देंगे नहीं, या तो हमें मिलेगा भी नहीं। ओके, नाउ अनदर ट्रांजेक्शन, received cash from Ram, rupees 50,000, rupees 48,000, and cash discount allowed by us rupees 2,000. Okay, received discount allowed to him, या तो received cash from Ram and cash discount allowed by us, या तो cash discount allowed to him, कोई भी वर्ड हो सकता है, allowed by us and allowed to him। सो हम यहाँ पे 2,000 का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, किसको? राम को। So we are getting a law,
हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो whenever we are giving cash discount to someone at that time, cash discount will be debited. क्या हो जाएगा तब, वो डेबिट होगा. सी who is the receiver, sorry, who is the giver? Ram is the giver. So Ram का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, and cash comes in a business डेबिट. कैश हमारे पास आ रही है तो कैश विल बी ए डेबिट. मैं यहाँ पे कंपाउंड एंट्री ही करूंगा. कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट. क्या वर्ड यूज किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, सो इट्स पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट. टोटल कितना था, कैश हमारे पास से गई है 48, डिस्काउंट था 2000, टोटल राम को हमें क्रेडिट किया 50,000. Clear everyone? Here we are giving discount to someone. Here we are giving discount to someone. और ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसकी जनरलाइजिंग ज्यादातर, क्योंकि दोनों डिस्काउंट साथ में आएंगे, ट्रेड और कैश, ज्यादा वही हार्ड पड़ेगा. आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कैलकुलेशन इसमें रहेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट. सो उस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहले ट्रेड होगा सेम क्वेश्चन में, उसके ऊपर कैश. तो ट्रेड की तो हम एंट्री करते नहीं है, जो अमाउंट बचेगी उसका हम कैश डिस्काउंट देंगे. ओके, उसमें भी कुछ अमाउंट कैश में, कुछ अमाउंट क्रेडिट में है. तो जितनी कैश में अमाउंट है उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट मिलता है. क्रेडिट के ऊपर कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नेवर. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस सर. Okay. Now, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिससे आपको ये पता चले. अच्छा, वन मोर थिंग, फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया है. तब हमने आगे जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, तब फुल सेटलमेंट में हम क्या करते थे, याद है? फुल सेटलमेंट वर्ड आता था तब. फुल सेटलमेंट प्रॉफिट में डालते थे, और लॉस हुआ तो फुल सेटलमेंट में यहाँ पे दोनों हो सकता था ना. हमें कई बार लॉस भी होता था, कई बार प्रॉफिट भी होता था. तो जब प्रॉफिट होता था तो हम कैपिटल में ऐड करते थे, और लॉस हुआ तो हम कैपिटल और कैश में से माइनस करते थे. तो यहाँ पे भी जब हमारे फुल सेटलमेंट वर्ड दिया गया है कि भाई फुल सेटलमेंट है, तब हमें यहाँ वहां पे डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी. फुल सेटलमेंट मतलब वहां पे डिस्काउंट हम दे रहे, कैश डिस्काउंट उनको मिल रहा है, नॉट ट्रेड, बट यहाँ पे कैश डिस्काउंट. फुल सेटलमेंट मतलब कैश डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे आपको करनी होगी. सर डिस्काउंट के परसेंटेज हमें निकालने होंगे ना? तो हाँ, परसेंटेज आपको ही निकालने हैं बेटा, परसेंटेज आपको ही निकालने हैं. ओके, रिसीव में जो भी, मतलब हम डिस्काउंट फुल सेटलमेंट में हम रिसीव कर रहे हैं, तो जो भी अमाउंट वहां पे डिडक्ट हो रही है, दैट विल बी अवर कैश डिस्काउंट. वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारा कैश डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा. ओके, वो हमारे लिए क्या होगा, वहां पे कैश डिस्काउंट नहीं, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा, वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट ही होगा. क्लियर एवरीवन? व्हेनेवर द फुल सेटलमेंट वर्ड इज यूज, आप पे कर रहे हो तो भी ठीक है, या रिसीव कर रहे हो एट दैट टाइम ऑल्सो. इफ यू आर पेइंग टू समवन एंड फुल सेटलमेंट मीन्स यू आर रिसीविंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट. एंड समवन पे टू अस, जब कोई हमें पे कर रहा है, सो वी आर अलाउइंग टू हिम, सो इट विल बी ए डेबिट. वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा. क्लियर एवरीवन? So that is a trade discount and cash discount. Trade discount and cash discount.
और मोस्ट ऑफ वो परसेंटेज में ही आएगा आपको। किसमें करना होगा? परसेंटेज में ही दिया होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको परसेंटेज में ही देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है और न्यू स्टार्ट करेंगे तो पूरा भी नहीं होगा। सो जब भी नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, तब हम आगे इसके एक्सरसाइज, आगे के एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर एवरीवन? चलो, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में कोई डाउट, कोई क्वेरी? यस सर। कोई क्वेरी नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम। बाय एवरीवन। आज होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ।